coordinates of orthocenter of triangle having vertices are given. First vertex is 1 2, second vertex is 2 3, and third vertex is 4 3. Find the coordinates of orthocenter of the triangle having vertices are given. Orthocenter, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए what is orthocenter. Orthocenter, altitudes of a triangle meet at a point is called orthocenter. Orthocenter of the triangle. Altitudes of a triangle meet at a point. ये कोई ट्रायंगल आपके पास, ट्रायंगल के वर्टेक्स G1 है, A वर्टेक्स आपके पास 1 2, B वर्टेक्स है 2 3 और C वर्टेक्स आपके पास 4 3. या तो वर्टिसेस दे देगा या फिर साइड AB, AC और BC साइड दे देगा. उन साइड से आप वर्टिसेस से भी सोल्व कर सकते हो, डायरेक्ट साइड से भी सोल्व कर सकते हो. जब भी साइड देगा तो आप वर्टिसेस फाइंड आउट कर लें. Point of intersection of AB and AC is point A. Point of intersection of AB and BC is point B. Point of intersection of AC and BC is point C. Tell me right here, altitude of a triangle AD, altitude perpendicular on BC, BE perpendicular on AC, CF perpendicular on AB. And altitudes of a triangle meet at a point. This is called Z, centroid. This is centroid of triangle. G is called centroid of the triangle. That is AD perpendicular on BC. AD perpendicular on BC. BE perpendicular on AC. And CF perpendicular on AB. All are altitudes. AD, BE and CF. They all are altitudes of a triangle. And they are meet at a point Z. And this point Z is called centroid of the triangle. अब AD और BE की इक्वेशन चाहिए मेरे को. किन्हीं भी दो altitudes की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ. इक्वेशन ऑफ altitudes of a triangle. किन्हीं भी दो एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे आप. AD परपेंडिकुलर ऑन BC है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड स्लोप ऑफ BC. स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू M1 कह दें, इज इक्वल टू, ये BC लाइन सेगमेंट है, y2 माइनस y1 over x2 minus x1. And this is equal to 0/2. But then what is the slope of AD? Then this implies slope of AD is equal to -2/0 because AD perpendicular on BC. और अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप की प्रोडक्ट M1 into M2 is equal to -1 होता है. M1 स्लोप गिवन है 0/2, तो ये हो गया 0/2 into M2 is equal to -1. M2 स्लोप हो गई आपके पास -2/0. यही लिखा हमने AD की स्लोप, नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप BC. Therefore, equation of altitude AD. Therefore, equation of altitude AD passes
through point A12 with the slope minus 2 upon 0. इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड एडी की इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं मैं, जो पास होती है 1 2 से और जिसकी स्लोप है मेरे पास minus 2 upon 0. 1 point form, that is y minus y1 is equal to m x minus x1. x1 y1 ये रहा आपके पास, m आपके पास ये रहा, तो मेरे पास इक्वेशन होगी y minus 2 upon 0 into x minus 1. ये 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास इक्वेशन आ गई x minus 1 is equal to 0. ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड आ गई मेरे पास, राइट। इसी तरह बीई एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल लेते हैं। बीई किस पे परपेंडिकुलर है? बीई परपेंडिकुलर ऑन AC. Then what is the slope of AC? Slope of AC. Slope of AC is equal to AC की slope y2 minus y1 over x2 minus x1, and this is equal to m1 slope of AC is equal to 1 by 3. But BE perpendicular on AC, this implies slope of BE वो हो गई आपके पास नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल -3 upon 1. इसकी स्लोप, जो स्लोप AC की होगी उसका नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल BE की स्लोप होगी, क्योंकjego BE परपेंडिकुलर AC के ऊपर है। कंडीशन हमने लिख रखी है m1 into m2 is equal to -1. इस कंडीशन से हम प्लॉट कर रहे हैं। Therefore, equation of line BE passes through point B 2 3 with the slope -3 वो 1 पॉइंट फॉर्म होगी y minus y1 is equal to m x minus x1. ये हो गया y minus 3 is equal to minus 3x plus 6, और इसको सोल्व करेंगे तो इक्वेशन आएगी आपके पास 3x प्लस का y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0. ये सेकंड इक्वेशन आ गई। किन्हीं भी दो एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल लें आप, और दोनों एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। अब यहां से फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू 1 आ रही है आपके पास, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दे आप, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 6 आ गया आपके पास। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड B आ गया। दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन AD and BE, that is G के कोऑर्डिनेट्स आगे, G आ गया आपके पास 1 6, and this is called centroid of triangle. This is called centroid of triangle. AD और B का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन G है, तो G के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास 1 and 6, x1 आ गया, y6 आ गया। This is called centroid of the triangle having vertices are given. तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि what is centroid of a triangle. Altitudes of a triangle meet at a point is called centroid of the triangle. Altitude, vertex A से BC लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर डाल दिया, AD हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, BE और CF। किन्हीं भी दो एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल लें आप, दो एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल लें और फिर दोनों एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, वो एक कॉमन पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी, तो वो आपके पास क्या लाएगा? सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड AD एंड BE। आप BE और CF का भी निकाल सकते हो, आप AD और CF का निकाल सकते हो एल्टीट्यूड्स के इक्वेशंस। तो ये आपके पास ऑर्थो
ऑर्थोसेंटर होगा। एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल मीट एट ए पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्टेक्स ना लेकर के साइड ए भी दे देता, साइड बी सी दे देता, साइड ए सी दे देता, उससे भी आपके पास वर्टिसेस निकाल लेंगे। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कंसेंट लाइंस ए बी और ए सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए होगा, ए बी और बी सी लाइन सेगमेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी होगा, और ए सी और बी सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी होगा। तो बेसिकली आपको डेफिनेशन पता व्हाट इज एल्टीट्यूड, व्हाट इज ऑर्थोसेंटर। एल्टीट्यूड ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, BE परपेंडिकुलर ऑन AC एंड CF परपेंडिकुलर ऑन AB। जब भी परपेंडिकुलर आएगा तो जिस लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर आया है उस लाइन सेगमेंट की स्लोप निकाल ले। AD परपेंडिकुलर ऑन BC है तो BC की स्लोप निकाल ले। जो BC की स्लोप आएगी उसका नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल AD की स्लोप होगी, बिकॉज AD एंड BC आर परपेंडिकुलर। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है, M1 × M2 = -1। एक लाइन की स्लोप है तो दूसरे की हमें मिल जाएगी। वहां से हम इक्वेशन ऑफ AD निकाल लेंगे। 1 पॉइंट फ्रॉम से इस पॉइंट से पास होगी और इस AD की स्लोप है मेरे पास, वो फॉर्मूला लगा दिया y - y1 = mx - x1। इसी तरह से आप सेकंड उसकी इक्वेशन निकाल लेंगे और वहां से जो रिजल्ट आएगा उसको फॉलो कर देंगे तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the altitudes of a medians of a triangle having vertices are given or circumcenter of the triangle. Find the coordinates of circumcenter of the triangle. जब भी ऑर्थोसेंटर पूछेगा तो altitudes meet at a point is called orthocenter of the triangle. नेक्स्ट आपके पास फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ circumcenter of the triangle having vertices are given. Of a triangle having vertices are given. A vertex 0, 2, B vertex 3, 5, C vertex 5, 8. Vertices of a triangle meet at a point. Then what is the circumcenter? What is circumcenter? Circumcenter of triangles. Circumcenter. The right bisector or perpendicular bisector of any two sides meet at a point. Perpendicular or right. Perpendicular bisector the sides of the triangles. Perpendicular bisectors of the sides of a triangle meet at a point. Is called circumcenter. Perpendicular bisector of the sides of a triangle. देखिए ये ट्रायंगल आपके पास A, B and C with the sides of a triangle. उसने बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, एक साइड ए बी है, एक साइड बी सी है, एक साइड ए सी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस साइड का राइट बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी
perpendicular bisector of AB, perpendicular bisector of AC, perpendicular bisector of AC meet at a point. This is called circumcenter of the triangle. This is called circumcenter of the triangle. M. This is circumcenter of triangle. Perpendicular bisector of the sides of the triangles. BC, AB और AC के राइट बाइसेक्टर ले ले. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of the sides of the triangle meet at a point. Therefore, this right bisector D हो गया, ये पॉइंट E हो गया आपके पास और ये F हो गया. राइट, A के वर्टेक्स E1 है, वर्टेक्स A आपके पास 0 2, वर्टेक्स B की बने 3 5, वर्टेक्स C की बने 5 8, 5 8. तो यह है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. बाइसेक्टर का मतलब हो गया, राइट बाइसेक्टर का मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज डी ई एंड एफ बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बीसी. बीसी का मिड पॉइंट डी है, AC का मिड पॉइंट E है और F है मिड पॉइंट किसका, AB. D, E एंड F और द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड BC, AC एंड AB. तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से, क्योंकि बाइसेक्टर वर्ड यूज किया उसमें, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. राइट बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. देयरफॉर डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल ले बाई मिड पॉइंट फॉर्मूले से. x1 प्लस x2 अपॉन 2, 3 प्लस 5 अपॉन 2, y1 प्लस y2, 5 प्लस 8 अपॉन 2. मिड पॉइंट फॉर्मूले से. तो कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, डी का कोऑर्डिनेट्स आ गए यहाँ से 8 और दिस 4 और 13/2. ये मिड पॉइंट है. इसी तरह ई का मिड पॉइंट निकाला 5/2 और यहां से 5. x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2. f का मिड पॉइंट 3/2 और 5 और 2 7/2. दे आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द D, E एंड F के कोऑर्डिनेट्स आ गए. M आपके पास क्या है, M बी द circumcenter of a triangle ABC. MD जो है, MD perpendicular on BC, MD perpendicular on BC and ME perpendicular on AC and MF perpendicular on AB. MD की इक्वेशन चाहिए मेरे को, MD की इक्वेशन चाहिए मेरे को. पासिंग पॉइंट तो गिवन है D का. MD की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे पास MD की स्लोप नहीं है. MD किस पे परपेंडिकुलर है, BC के ऊपर. तो BC की स्लोप निकाल ले. स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू M1 कह दे, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 8 minus 5 upon x2 minus x1 5 minus 3. 8 minus 5 3, 5 minus 3 is 2. Then this implies slope of MD. क्योंकि MD परपेंडिकुलर BC के ऊपर, तो BC की स्लोप है 3/2. तो MD की स्लोप क्या होगी, -2/3. बिकॉज M1 into M2 इज इक्वल टू -1 होता है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है. M1 है 3/2 तो M2 हो जाएगा -2/3. Therefore, equation of line MD, कहां से पास होता है, passes through point D 4 and 13/2 having slope
उसकी स्लोप क्या है आपके पास -2/3, स्लोप इज -2/3। तो क्या होगी इक्वेशन ऑफ लाइन एमडी की 1 पॉइंट फॉर्म से y minus y1 is equal to m x minus x1. This will be the equation of a line passing through this point. इसको सॉल्व कर लेंगे हम यहां से, हो गया 3y minus 13/2 is equal to -2x plus 8। और यहां से आगे आपके पास सोल्व करते हैं तो कंप्लीट रिजल्ट को ये हो गया 2y minus 13 upon 2 is equal to -2x plus 8। और ये हो गया 6y minus 39 is equal to 2 of -2x plus 8। और ये हो गया 6y minus 39 is equal to माइनस का 4x plus 16। तो फर्स्ट इक्वेशन आगे मेरे पास 4x plus 6y minus 55 is equal to 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई आपके पास 9 और 6 5 हो गया और 3 और 4 1 और 1 5 -55। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ एमडी। इसी तरह से दूसरा केस ले लेते हैं, इक्वेशन ऑफ एमई निकाल लेंगे और फिर दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। आल्सो ME perpendicular on AC, then this implies slope of AC is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, and this is equal to 6 upon 5. Then therefore slope of ME negative and reciprocal 5 upon 6, because अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है। एक स्लोप है m1 6/5 और m2 हो जाएगी -5/6। therefore equation of line ME passes through point 5/2 and 5 with slope -5 upon 6, having slope 5 upon 6। तो इस इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी मेरे पास y minus y1 is equal to m x minus x1। ये x1 है, ये y1 और ये उसकी स्लोप। ये हो गया 6y माइनस का 30 इज इक्वल टू माइनस का 5x और ये हो गया प्लस का 25 अपॉन 2। और मेरे पास इक्वेशन आ गई यहाँ से 5x प्लस का 6y माइनस का 30 माइनस 25/2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों पेयर्स को लेफ्ट में ले आया। 2 एलसीएम ले लें तो ये हो गया 10x प्लस 12y माइनस का 60 और माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। 2 होल एलसीएम ले लिया हमने। तो क्या इक्वेशन बनी आपके पास, यहाँ से इक्वेशन आ गई 10x प्लस 12y माइनस 85 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाली हमने। किन्हीं भी दो राइट बाइसेक्टर की वैल्यू इक्वेशन निकाल ले आप, एनी 2 राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल ले आप यहाँ से, और जो राइट बाइसेक्टर इक्वेशन आती है उन दोनों को सॉल्व कर ले। आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करें, वहां से x और y की जो वैल्यू आएगी वो m का कोऑर्डिनेट आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ MD एंड ME। वी फाइंड any 2 equation of the right bisector of the given equation. Then we write here solve first and second, solve first and second, solve equation first and second,
फर्स्ट इक्वेशन है 4x प्लस 6y माइनस 55 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है 10x प्लस 12y माइनस 85 इज इक्वल टू 0। या तो x का कोएफिशिएंट इक्वेट कर ले या y का इक्वेट कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12y हो जाएगा, या 12y है ऑलरेडी। तो मेरे पास इक्वेशन हो गई 8x प्लस 12y माइनस 110 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन है 10x प्लस 12y माइनस 85 इज इक्वल टू 0। दोनों के सेम साइन है, y का कोफिशिएंट इक्वेट किया हमने, y का कोफिशिएंट इक्वेट कर दिया, ये कैंसिल हो गया। मेरे पास आ गया माइनस का 2x और यहां से माइनस 5 आ गया आपके पास, और 11 8 3 इज इक्वल टू 0। यहां से हो गया मेरे पास माइनस 2x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू माइनस 25/2। ये x की वैल्यू आ गई माइनस 25/2। x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें चाहे सेकंड में पुट कर दें। हमने पुट किया, पुट x इज इक्वल टू माइनस 25/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां पुट किया तो मेरे पास हो गया 4 माइनस का 25/2 प्लस का 6y माइनस 55 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, माइनस का 50 प्लस का 6y माइनस 55 इज इक्वल टू 0। और ये हो गया 6y माइनस 105 इज इक्वल टू 0। और यहां से आया मेरे पास 6y इज इक्वल टू 105 और y की वैल्यू होगी 105/6 और ये हो गया आपके पास 35/2। 35/2 ये y की वैल्यू, 3 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास 35/2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल आ गया, m के कोऑर्डिनेट्स आ गए। देयरफॉर coordinates of m, coordinates of circumcenter m, x की वैल्यू माइनस 25/2 और y की वैल्यू 35/2। ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल। राइट बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया BC का, और AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वो पॉइंट कहलाता है सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल मीट एट ए पॉइंट इज कॉल्ड सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो यहां से MD परपेंडिकुलर BC के ऊपर है तो BC की स्लोप निकाल ले, जो BC की स्लोप आएगी उसका नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल MD की स्लोप आ जाएगी। फिर इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर निकाल लेंगे MD की, जो इस पॉइंट D पॉइंट से पास होगा और स्लोप है आपके पास, जो BC की स्लोप है उसका उल्टा और माइनस साइन, नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल। इसी तरह AC की स्लोप निकालें, जो AC की स्लोप आएगी उसका नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल BE की स्लोप हो जाएगी। तो वहां से इक्वेशन ऑफ BE निकाल लेंगे, जो इस पॉइंट से पास होगी E पॉइंट से, और इसकी स्लोप दे रखी है नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ AC। तो दो इक्वेशन आ जाएंगी, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों किस पॉइंट पे काट रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कोई किसी भी साइड्स के दो राइट बाइसेक्टर निकाल ले और उनकी इक्वेशन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो दो लाइंस का, वो आपके पास सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल कहलाएगा। दैट इज कॉल्ड सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। एक रिजल्ट और रह गया इसमें, मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। फाइंड द medians of the triangle having sides are given or vertices are given। और तो सेंटर हमने बता दिया, सर्कमसेंटर बता दिया। अब नेक्स्ट चलता आपके पास मीडियन, इक्वेशन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल्स हैविंग साइड्स आर गिवन। तो आपको पता
turns equation of median. Next आपके पास find the equation of the median of a triangle formed by the lines. Find the equation of the medians. Find equation of the medians of a triangle formed by the lines. इक्वेशन ऑफ द मीडियन चाहिए आपको. लाइन्स आपके पास x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. मीडियंस की इक्वेशन चाहिए आपको. मीडियंस की इक्वेशन चाहिए. इक्वेशन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल्स. ट्रायंगल आपके पास ये है. ये आपके पास ट्रायंगल है ए, बी और सी. आपको गिवन है फॉर्म बाय द लाइंस. फर्स्ट लाइन है x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सेकेंड लाइन है x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. और थर्ड लाइन है 5x. BC और AC साइड्स गिवन है. आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ द मीडियन AD. दिस AD विद द मीडियन AD, BE and CF. आपको चाहिए टू फाइंड इक्वेशन of median AD, BE and CF. Equation of the median AD, BE and CF. Here E and F be the midpoints of the side BC, AC and AB. BC का मिड पॉइंट D होगा, AC का मिड पॉइंट E और CF का मिड पॉइंट F भी द मिड पॉइंट ऑफ AB. तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तभी निकले, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट तभी निकले तो मेरे पास A वर्टेक्स हो, वर्टेक्स A हो मेरे पास, वर्टेक्स B हो और वर्टेक्स C हो. तभी मैं इक्वेशन ऑफ मीडियन AD फाइंड आउट कर सकता हूं. वर्टेक्सेस निकालने आप साइड्स गिवन है. जैसे ही वर्टेक्स आएगा तो A का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, B का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, C का कोऑर्डिनेट आ गया. B और C का मिड पॉइंट निकालेंगे, D का कोऑर्डिनेट आ गया और 2 पॉइंट फॉर्म से मीडियन की इक्वेशन निकाल लेंगे. यूजिंग द 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ मीडियन फाइंड आउट हो जाएगी आपके पास. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व इक्वेशन AB एंड AC. सॉल्व इक्वेशन AB एंड इक्वेशन AC. ये AB है और ये AC है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A है. फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लें. फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लें. 3x प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0. 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0. और AC की इक्वेशन है 5x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया. यहाँ से आ गया 8x 5 और 3 और यहाँ से आ गया माइनस 16 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 2 आ गया. 8x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2. x इज इक्वल टू 2 यहाँ पुट करते हैं AB के अंदर, तो प्लस का 2 और माइनस का 6, x 2
और y4 ये कोऑर्डिनेट होगा। 2 माइनस 6 तो माइनस 4 बचेगा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया 2 और 4, x2 4। इसी तरह AB और BC का कोऑर्डिनेट ले, इक्वेशन ऑफ AB एंड इक्वेशन ऑफ BC। AB और BC का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन B होगा, AB और BC का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन B होगा। सॉल्व करिए, x प्लस वाई माइनस 6 ये AB की इक्वेशन है और x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करें, x इक्वल है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से y1 आ गया। y की वैल्यू 1 पुट करें तो x 5 आएगा, 1 माइनस 6 और प्लस 1 और माइनस 6 तो ये हो गया 5 और 1। y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 5 आ जाएगी यहाँ से। इसी तरह आप सोल्व करें AB और AC और BC, इक्वेशन ऑफ AC एंड BC, AC और BC। AC की इक्वेशन है 5x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और BC की इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y के कोएफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दे, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, 4x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू माइनस 1 आ गई, x की वैल्यू माइनस 1 आ गई यहाँ से। x की वैल्यू माइनस 1 यहाँ रख ले, x की वैल्यू माइनस 1 यहाँ रखेंगे तो आपके पास आएगा माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और ये हो गया माइनस का 3 और माइनस 3y इज इक्वल टू 0, माइनस 3y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये आ गया माइनस 1 और माइनस 1। तीनों वर्टिसेस आ गए आपके पास A, B और C। इक्वेशन AB BC सॉल्व की आपने तो आपके पास B का कोऑर्डिनेट आ गया, AB और AC को सॉल्व किया तो A का कोऑर्डिनेट आ गया, AC और BC को सॉल्व किया तो C का कोऑर्डिनेट आ गया। देन D के कोऑर्डिनेट्स निकालना, D विद द मिड पॉइंट बोला है आपने, देन D विद द कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यहाँ से, D मिड पॉइंट है तो D का कोऑर्डिनेट्स आ गया 5 माइनस 1 अपॉन 2 2 आ गया और 1 माइनस 1 0 आ गया, 2 0 इसका कोऑर्डिनेट आया। इसी तरह E का कोऑर्डिनेट निकाल ले, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 2 और माइनस 1 1 बाई 2, y1 प्लस y2 3 बाई 2। इसी तरह F का कोऑर्डिनेट निकाल ले आप, x1 प्लस x2 अपॉन 2 7 बाई 2 और y1 प्लस y2 5 बाई 2। ये आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट्स आ गए D, E और F। दे आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB, BC एंड AC। देन इक्वेशन ऑफ मीडियन AD। Therefore, इक्वेशन ऑफ मीडियन AD यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करें, यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। AD x1 y1 x2 y2, तो ये हो गया y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ये हो गया y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 0 इंटू x माइनस 2। ये 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0 हो गया, तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ मीडियन AD आई आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरह इक्वेशन ऑफ मीडियन BE, इक्वेशन ऑफ मीडियन BE x1 y1 x2 y2, तो ये हो गया y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म, इसको सोल्व करें तो यहां से हो गया y माइनस 1, 3 माइनस 2 तो 1 बाई 2 हो गया, डिवाइडेड बाई
1 माइनस 10 तो माइनस का 9/2 हो गया इंटू एक्स माइनस 5। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस का 9 इधर आ गया, एग्जैक्ट ये आया y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/9 इंटू एक्स माइनस 5। तो उसकी इक्वेशन आई आपके पास 9y माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5। 9y माइनस 9 माइनस एक्स प्लस 5 और ये हो गया x प्लस 9y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 की इक्वेशन ऑफ मीडियन BE आ गई आपके पास। और इसी तरह इक्वेशन ऑफ मीडियन CF निकाल लेंगे आप यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज फाउंड बाय द लाइंस और हैविंग वर्टिसेस आर गिवन। या तो वर्टिसेस दे देगा डायरेक्ट या फिर साइड्स दे देगा। तो साइड से आप वर्टिसेस निकाल लेंगे और उसके बाद कंडीशन आ जाएगी आपके पास। ये तीनों आर्टिकल, तीनों जो क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। CF की इक्वेशन निकाल लेना आप यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ मीडियन CF, ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर एंड मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। नेक्स्ट आपके पास फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a point from a line. Perpendicular distance of a point आपके पास this x1 y1 of a point from a line और लाइन है मेरे पास ax प्लस by प्लस c इक्वल टू c। परपेंडिकुलर डिस्टेंस और खाली डिस्टेंस भी कह सकता है, डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कंडीशन आपके पास, ध्यान दें आप थोड़ा सा। एक्स एक्सिस आपके पास, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन आपके पास, ये इंटरसेप्ट है ऑन एक्स एक्सिस, ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ये कोई पॉइंट है P, ये पॉइंट है कोई P x1 y1। इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डाला आपने PM, दिस इज कॉल्ड D डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन AB। PM is equal to D is equal to perpendicular distance or length of perpendicular from the point on the line। तो लाइन आपके पास ax plus by plus c equal to 0। इक्वेशन ऑफ लाइन AB, इक्वेशन ऑफ लाइन AB वो आपके पास ax plus by plus c equal to 0। अब यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM की लेंथ निकाली है, उसको ज्वाइन कर दें, उसको भी ज्वाइन कर। ये ट्रायंगल बनेगी आपके पास PAB। इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हम, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे PAB का जब तीनों वर्टिसेस दे रखे हों, B वर्टेक्स, A वर्टेक्स और B वर्टेक्स। और दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB हैविंग बेस AB और परपेंडिकुलर PM। उन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। देखिए लाइन आपके पास ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये लाइन है AB की। तो पॉइंट A लाई करता है, पॉइंट A लाई ऑन x एक्सिस। ये पॉइंट A लाई करता है x एक्सिस के ऊपर। इसका मतलब है यहाँ पे y 0 है। y को 0 पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी ax प्लस c इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस c अपॉन a। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास
माइनस का सी अपॉन ए और जी। ए कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ। अब बात आती है बी कोऑर्डिनेट की, पॉइंट बी की। ये पॉइंट बी, इस पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी कहाँ लाई करता है? पॉइंट बी लाइज ऑन वाई एक्सिस। और अगर पॉइंट लाई करेगा बी वाई एक्सिस के ऊपर तो वहां आपके पास x0 होगा। x0 होगा तो आपके पास इक्वेशन ये आएगी बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस सी अपॉन बी। तो ये पॉइंट हो गया 0 और माइनस सी अपॉन बी। बोलिए, क्योंकि लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी गिवन है तो ए का कोऑर्डिनेट चाहिए, बी का कोऑर्डिनेट चाहिए। पॉइंट ए लाई करता है एक्स एक्सिस के ऊपर, y 0 हो जाएगा, और पॉइंट बी लाई करता है y एक्सिस के ऊपर, x 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस ए बी निकालता हूँ, डिस्टेंस ए बी। दैट डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस फॉर्मूला ले आप, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और स्क्वायर। दिस इज द यूजिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मेरे पास क्या रिजल्ट आया यहाँ से? ये हो गया सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो गया प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम आ गया, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन दिस। तो यहाँ से हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम, इसके रूट 7 है इसके, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बनेगा देखिए, सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो सी बाहर आ गया और ये ए भी बाहर आ गया, और मेरे पास रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस ए बी। ये ए बी आया। यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन लेंगे, सी स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो सी आएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ए भी आएगा, रिमेनिंग बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस ये आ गया मेरे पास। उसके बाद क्या किया हमने? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ले लिया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी इज इक्वल टू 1/2, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, x1 y1 x1 y1 x2 y2 x2 y2 x3 y3 x1 y1 P A B, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो वहां से मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, एक्सपेंड करेंगे तो ये हो गया 1/2, दिस 0 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस y1 c अपॉन a प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस 0 प्लस, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 माइनस प्लस हो गया x1 c अपॉन b। ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी आ रहा है आपके पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या बनेगा यहां से 1/2, ये हो गया मेरे पास सी y1 अपॉन ए, यहां से प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, यहां से सी x1 अपॉन बी। कंप्लीट एलसीएम आ गया मेरे पास यहां से 1/2, ए बी एलसीएम ले लिया, ए बी एलसीएम लिया तो बी बचा बी सी y1 प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी x1। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आया देखिए, सी यहां से और सी यहां से कॉमन ले लें, तो ये हो गया सी अपॉन 2ab, सी अपॉन 2ab। तो
क्या दिल बच रहा है मेरे पास, ax1 प्लस by1 प्लस, ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB आया। जब मेरे को तीनों वर्टिसेस गिवन है तो मेरे पास ये केस आ गया। अब दूसरा केस लिया, AB मेरे को गिवन है, दूसरा केस यहां फॉलो कर लेते हैं। Also area of triangle PAB is equal to 1/2 base into height, 1/2 base into height, ये भी रफ ट्रायंगल है, और 1/2 बेस है AB और हाइट है PM। बेस है इसका AB और परपेंडिकुलर है PM। तो 1/2 व्हाट इज AB, AB आपके पास ये रहा, C ऑफ AB A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, एंड व्हाट इज PM, PM इज C, D फॉर डिस्टेंस। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB है, ये सेकंड इक्वेशन है, और ये फर्स्ट इक्वेशन है। ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB है आपके पास। तो इन दोनों को इक्वेट कर दें, इसकी जरूरत नहीं है अब। देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वेट करेंगे तो मेरे पास हो गया C/2AB A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू D इज इक्वल टू C/2AB AX1 प्लस BY1 प्लस C। दोनों को इक्वेट कर दिया, क्योंकि ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB है और ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB है। तो ये C/2AB कैंसिल हो गया। मेरे को सिर्फ D चाहिए, D डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ये। तो D इज इक्वल टू AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर स्क्वायर दे दो, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला बनेगा। AX1, ये लाइन दे रखी है आपको AB, AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट X की जगह X1 पुट कर दिया, AX1 हो गया, Y की जगह Y1 पुट कर दिया, BY1 हो गया, कांस्टेंट एज इट इज, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ X का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ Y का स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये हमेशा डिस्टेंस बनेगा। एक पॉइंट देगा, एक लाइन दे देगा, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द गिवन पॉइंट ऑफ द लाइन। इसी केस पे कहता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इफ पॉइंट P at origin, that is perpendicular distance from 0 0। अब केस ये हो जाएगा, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, इस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से ये डिस्टेंस। तो यहाँ x1 की जगह 0 रखते हैं, y1 की जगह 0, तो आपके पास क्या आएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, C अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर स्क्वायर। ये डिस्टेंस होगा फ्रॉम द ओरिजिन, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर स्क्वायर रूट। दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। लाइन दे देगा, कोई पॉइंट दे देगा, लाइन पुट कर देंगे और वो पॉइंट x1 y1 पुट करेंगे, C एज इट इज, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर स्क्वायर रूट। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके बाद आता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, फर्स्ट लाइन आपके पास AX A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट लाइन है। और सेकेंड लाइन आपके पास A1x प्लस B1y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। बोथ आर पैरेलल लाइंस, बोथ आर पैरेलल लाइंस।
दोनों लाइंस पैरेलल है, कोएफिशिएंट ऑफ x दोनों के सेम है, कोएफिशिएंट ऑफ y दोनों के सेम है। अगर दोनों लाइन के कोएफिशिएंट ऑफ x और y सेम होंगे तो लाइंस पैरेलल होंगी, क्योंकि दोनों की स्लोप सेम होगी, तो लाइंस आर पैरेलल। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस बोला है उसने। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस के अंदर आपके पास केस बनेगा, ये x एक्सिस है, ये माइनस x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये माइनस y एक्सिस। एक लाइन ये आपके पास L1, एक लाइन ये है L2। बोथ द लाइंस आर पैरेलल। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये डिस्टेंस चलेगी, ये डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस होगा आपके पास, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस